विद्यार्थियों, आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ उसका टॉपिक है हेरोन्स फार्मूला। सो एज द नेम इंडिकेट हेरोन्स, तो ये फार्मूला सबसे पहले ट्राइंगल के एरिया कैलकुलेट करने के लिए हेरोन्स द्वारा दिया गया था। तो हेरोन वाज द फर्स्ट मैन टू गिव दिस फार्मूला for calculating the area of the triangle of given sides, three sides A, B, C. So this is the formula I am writing here. So for a triangle with sides A, B and C, the area of the triangle ABC is equal to S into S minus A, S minus B, S minus C under root, where S is equal to A plus B plus C upon 2. S is known as the half parameter of the triangle with sides, three sides A, B, C. So first of all we calculate the half parameter and then apply the formula S into S minus A into S minus B into S minus C and the whole under root. Now before we proceed to the next topic, further with the main topic, we have some identity. So I have drawn some figures here. एक्सरसाइज में जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, कुछ फिगर्स की, कुछ फार्मूलाज, कुछ पैरामीटर्स, जिन टर्म्स की आगे इसमें ज़रूरत पड़ेगी, वो बिफोर वी प्रोसीड टू द मेन टॉपिक, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्राइंगल, द नेम, फिगर्स, पैरामीटर्स एंड एरिया एंड स्क्वायर मीटर्स. सो फर्स्ट वी टेक द फिगर, दैट इज़ द triangle with sides, three sides A, B and C, and this is the height of the triangle. इसके लिए आपके दो फॉर्मूलेस होते हैं एरिया निकालने के लिए, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में हम जो यूज़ करेंगे वो हेरोन फार्मूला यूज़ करेंगे. तो उसके लिए पैरामीटर इज गिवन बाय sum of the three sides A plus B plus C, that is a parameter, and that is equal to twice the half parameter. And the formula used for the calculating areas S into S minus A into S minus B into S minus C whole under root, that is called the Heron's formula. अब इसको हीरो फार्मूला भी बोलते हैं और हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं, यानी दोनों इसके नाम हैं. नेक्स्ट इज द राइट ट्राइंगल. A triangle with right angle. So this is the base, height and diagonal. Hypotenuse of the right triangle. This is the written here is D. Here D is used for hypotenuse, not diagonal, hypotenuse. So the parameter will be sum of base, height and the hypotenuse, that is the parameter, and the area will be half of the base multiplied by height. Then isosceles right triangle, same. देखो ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, लेकिन ये आइसोसेलेस है, मीन्स बेस एंड हाइट जो है दे आर इक्वल. सो ए here I've written here A and A, both sides are same. So that will be therefore parameter will be sum of these two sides, A plus A, that is 2A, and plus D, that is hypotenuse, and the area will be half of the base multiply height, so it becomes half of A square.
Next figure is equilateral triangle. The triangle with equal three sides equal. All three sides are equal. A. The perimeter will be sum of three sides or 3 multiplied by one side. 3A. The area will be half of side and multiply with the height. Half of साइड मल्टीप्लाई हाइट. तो ये फार्मूला तो है जैसे कि राइट ट्रायंगल का हम यूज़ करते हैं वो फार्मूला है. और ये जो फार्मूला है ये हीरोन फार्मूला भी है. √3/4 A स्क्वायर ऑफ द साइड. रेक्टेंगल में जो पैरामीटर है वो होता है 2 × A + B. These are A and B are the sides of the right triangle. Rectangle. The sides of the rectangle A, B and B, the perimeter will be 2 × A + B and the area will be product of the two sides, A × B. Length or breadth. Square, a figure with 4 equal sides and each angle equal to 90 degree. So perimeter will be 4 into side and the area will be side into side, A square. Next figure is parallelogram. Parallelogram, the two opposite sides equal and parallel. So A and B, these are the two adjacent sides of the parallelogram, and this H shows the height of the parallelogram. The perimeter will be 2 into sum of the two sides, adjacent sides, 2 × A + B, and the area will be side and the adjacent height, A × H. Next, some more figures. The next figure is a rhombus. A rhombus is a quadrilateral with all 4 sides equal, but the diagonals are of different length. So A. I have written A. 4 sides, all sides are equal, but the diagonal D1, diagonal D2, they are of unequal length. The perimeter will be 4 multiplied by side. All sides are equal, the sum of the 4 sides, that is 4A. And the area will be half of diagonal 1 multiplied diagonal 2. Both diagonals are multiplied and multiplied with half. Next figure is trapezium. Trapezium is a quadrilateral with 2 parallel sides. 2 sides parallel and 2 non-parallel. जैसे मैंने इस यहाँ A लिखा है, ये B लिखा है, तो ये A और B ये 2 साइड्स हैं जो कि पैरेलल हैं. और ये जो इधर लेफ्ट साइड में साइड दिखा रखी है और ये दिखा रखी है, ये नॉन पैरेलल साइड है. और ये जो है इसका हाइट है. द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स, दैट इज द height, or you can say the perpendicular on one of the parallel sides. So this is the distance between 2 parallel sides. अब इसको हम h के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसलिए पैरामीटर के लिए इसमें कोई भी डेफिनेट फार्मूला नहीं है. क्योंकि इसकी जो साइड्स की जो लेंथ होती है वो छोटी बड़ी हो सकती है. किसी क्वेश्चन में लेंथ फिक्स नहीं होती इसके लिए, तो इसलिए उसके लिए पैरामीटर के लिए कोई भी फार्मूला जो है यहाँ पर क्लियर कट में एक डेफिनेट फार्मूला नहीं होता. वैसे तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स. अगर आपको चारों साइड्स दे रखी हैं तो ऑल 4 साइड्स आर गिवन, पैरेलल साइड एज वेल एज अ नॉन पैरेलल साइड्स, द सम ऑफ द ऑल 4 साइड दैट विल बी द पैरामीटर ऑफ दैट गिवन ट्रेपेजियम. बट द फार्मूला फॉर एरिया इज फिक्स्ड, दैट इज हाफ of sum of the parallel side multiply with height, a distance between the parallel sides. And last figure is quadrilateral. A quadrilateral with 4 unequal sides. All 4 sides may be equal or may be unequal. So when the sides are unequal of length, all 4 sides are unequal. So how can you calculate the perimeter? Perimeter means again similar as for the trapezium, that is not fixed,
all sides may be differ in different questions. So the parameter will be sum of all four sides, the sides given in the questions. But the area, formula for area, that will be half of the diagonal. अब यहाँ पर इस फिगर में हमने डायगोनल ले रखा बी डी डायगोनल लिया हुआ. यहाँ अगर मैं ए और यहाँ सी लिख देता, ए बी सी डी ऐसे लिखता, तो डायगोनल बन जाना था डायगोनल ए सी. लेकिन मैंने फिगर में यहाँ ए बी सी डी ऐसे मार्क किया, तो डायगोनल ए बन गया बी डी डायगोनल. सो हाफ ऑफ द डायगोनल बी डी एंड मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ द हाइट h1 और h2. तो ये जो इस डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं ऑन द अपोजिट हाइट्स वर्सेस, तो ये जो ए की परपेंडिकुलर बी डी के ऊपर जो h1 एंड h2 आर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए एंड फ्रॉम सी ऑन परपेंडिकुलर बी डी. तो इसलिए इसका फार्मूला बना हाफ ऑफ द डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ द हाइट्स. तो ये कुछ फिगर हैं जो कि इस चैप्टर में आएंगे, तो इसलिए मैंने उसके लिए आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए उनके शेप्स फिगर्स बनाए हैं और उसके लिए पैरामीटर और एरिया के फार्मूलाज आपको इसमें बताए हैं. तो नेक्स्ट अब हम इसमें क्वेश्चंस लेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज इज ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए. मतलब ये एक साइन बोर्ड बना हुआ है, लिखा स्कूल अहेड, लेकिन इसकी जो शेप है वो कैसी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स लिखी हैं ए. द ई साइड्स इक्वल ए. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन फार्मूला. इसका एक पार्ट तो ये है कि आपको इसका एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का. फार्मूला कौन सा यूज़ करना, हेरोन्स फार्मूला. उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है कि इफ़ द इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. अब इसको दो पार्ट में करना है. पहला तो है कि इसकी साइड ए मानकर जो दे रखी है उससे इसका एरिया निकालना है बाय हेरोन्स फार्मूला. और उसके बाद सेकंड पार्ट होगा कि जब इसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर अगर दे रखा है तो उससे इसका एरिया क्या आएगा. सॉल्यूशन. द साइड ईस्ट साइड ऑफ equilateral triangle ABC is equal to A. Therefore, parameter will be A plus A plus A, that is 3A. The half parameter जिसे सेमी पैरामीटर भी बोलते हैं, सेमी पैरामीटर जिसके लिए सिंबल है S, so that will be 3A upon 2. So according to by Heron's formula, the area will be area of triangle ABC by Heron's formula S into S minus A, S minus B, S minus C under root. The value of S is 3A upon 2, 3A upon 2 minus A, 3A upon 2 minus A, 3A upon 2 minus A.
3a/2। अब इसे माइनस करें 3a/2 में से a माइनस, मैं इधर एक करके दिखा रहा, 3a/2 माइनस a/1, एलसीएम 2, 3a माइनस 2a, तो ये बनेगा a/2। तो इसलिए इसको माइनस करके आया a/2, आगे फिर वही a/2, नेक्स्ट a/2 अंडर रूट 3a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 16 अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ 3 विल बी अंडर रूट 3, अंडर रूट a 4 that will be a square, under root of 16 will be 4. So this is the area of equilateral triangle ABC with given side A। जब A इसकी साइड A थी तो इसका एरिया आएगा अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर। और यही फार्मूला के मैंने अभी जो आपको फिगर्स दी थी उसमें एरिया का फार्मूला यही था, अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर। अब आगे सेकंड पार्ट इसमें लिखा है द पैरामीटर, इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC 3A is equal to 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। Therefore, each side will be 180 divided by 360 सेंटीमीटर। सो A की वैल्यू आई 60 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू आप अभी जो हमने फार्मूला निकाला था उस फार्मूले में A की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इसका एरिया क्या आएगा, वो इसमें, सो एरिया ऑफ equilateral triangle ABC will be under root 3/4 A square, under root 3/4 A की जगह वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, under root 3/4 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर, so that will be under root 3600 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर फॉर दिस स्कूल। जो बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है स्कूल अहेड, तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है सिग्नल बोर्ड, उसका जो एरिया जो है, तो अगर ए साइड ए है उससे आता था अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर, और जब पैरामीटर 180 सेंटीमीटर दिया है यानी तीनों साइड्स का जोड़, तो उससे एरिया बनेगा 900 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is find the area of triangle two sides of which are 80 centimeter and 10 centimeter and the perimeter of the triangle is 42 centimeter. Next question is sides of a triangles are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find the area. मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं अभी इस बोर्ड पे, इसमें से मैं नीचे वाला क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। सो लेट अस टेक अ ट्राइंगल ABC. द साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 12x, 17x and 25x. 12, 17 and 25. We have put x
with all the sides. The ratio of the three sides of triangle 12:17:25. Let the sides 12x, 17x and 25x. Therefore, perimeter will be 12x plus 17x plus 25x, and that is equal to 540 centimeter. Given 540 centimeter, तो इनको ऐड करें तो ये हो गया 54x 540 centimeter. The value x will be 540 divided by 54, 10 centimeter. Therefore, sides will be, A will be 12x, means 12 into 10, 120 centimeter. B is 17x, 17 multiplied by 10, 170 centimeter. And the third side C, 25x, 25 multiplied 10, 250 centimeter. The area, the perimeter is given here 540, so S will be 540 divided by 2, 270 centimeter. The area will be S into S minus A, S minus B, S minus C under root. The value of S is 270. 270 minus, first A is 120. 270 minus 170 and 270 minus 250. 270 इसमें से माइनस होकर आ गया 150, माइनस होकर आया 100 और इसमें से है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर. अब इसमें फैक्टर करें 270 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, 50 के हो गए 3 इंटू 5 इंटू 10, 100 के फैक्टर हो गए 10 इंटू 10, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो गया 10 इंटू 2 सेंटीमीटर. अब इसमें पेयर्स लिए 3 3 3 3 4 बार है, 1 2 3 4, इसके 2 पेयर पूरे हो गए 3 इंटू 3. 10 देखिए 1 10 2 3 और 4. और 10 4 10 में से एक 10 2 10 हो गए और बाकी रह गया एक 5 एक 2 और एक ये 10. तो इस तरह से ये बने 4 3 से 1 2 3 और ये 3 4 3 में से 2 3 आगे, ऐसे 10 10 10 और 10. इन 4 10 में से 2 10 आगे, बाकी रह गया एक 5, एक रह गया 2 और एक रह गया 10. तो ये बन गए 100. 100 के में से 2 10 बने थे, इसमें से एक 10 ये हो गया. तो इस तरीके से पेयर्स पूरे हो गए और इसका टोटल आएगा 1 0 2 0 3 0, 3 into 3 9 centimeter square. So that will be the area of the given triangle.
So that will be 9000 centimeter square. So next question लिखा हुआ है, find the area of the triangle, two sides of which are given 18 and 10 centimeter. साइड मान लीजिए अगेन हम वही नाम लिखते हैं ABC। अब ये साइड A है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 10 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है C। सो द perimeter will be A plus B plus C, that is the perimeter, and the perimeter given is 42. Perimeter of the triangle A plus B plus C is equal to 42. अब वैल्यू A की वैल्यू होगी 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्लस C 42। तो C की वैल्यू आई 42 माइनस 10 और 18 जोड़ कर हो गया 28, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। अब A की वैल्यू हमारे पास है, B की भी है, C की भी है और पैरामीटर की भी है। तो हाफ पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, (42 divided by 2) that is 21 centimeter. तो area of triangle S into S minus A, S minus B into S minus C under root S की वैल्यू है 21, S is 21 minus first side 18, second side 21 minus 10 and the third side 21 minus 14. 21 minus first side 18, 21 minus second side 10 and 21 minus third side 14. अब इसके माइनस करके देखिए क्या आता है, और फैक्ट 21 माइनस करके आया 3, माइनस करके आया 11 और यहाँ माइनस करके कितना आया 7। अब 21 के फैक्टर क्या हो गए 3 इंटू 7 और ये 3 और 7 एक और है और बाकी रह गया 11 और उस पर लगाना है अंडर रूट। 21 के फैक्टर्स 3 और 7, एक 3 ये है एक 7 ये है, वो हमने ऐसे लिख लिया। अब 3 का पेयर पूरा हो गया, 7 का पेयर पूरा है, तो 3 और 7 ये पेयर में से अंडर रूट होकर बाहर आ गए, अंडर रूट से हट गए और बाकी रह गया 11 क्योंकि वो अनपेयर्ड है, तो ये बना 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट विल बी द एरिया ऑफ द triangle of sides. Given sides are 18 centimeter, 10 centimeter, perimeter given 42 centimeter square, sorry 42 centimeter. Next question, अभी आगे और दो क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं। एक क्वेश्चन है an isosceles triangle has a perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. The second question is, there is a slide in the park. One of its side wall has been painted in some color with the message, keep the park green and clean. If the sides of the walls are 15 meters, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. अब ये मैंने सेकंड क्वेश्चन पहले ले लिया है जिसके डायमेंशन दे रखे हैं 15 मीटर, 6 मीटर, 11 मीटर और ये एक वॉल है जिसकी ये डायमेंशन है 3, 15, 6 और 11 मीटर और उस वॉल के ऊपर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो इसका हमें इस वॉल का एरिया निकालना है। साइड्स
of the wall. 15 meter, 6 meter and 11 meter. So A 15 meter, B 6 meter, C 11 meter. उसके बाद S A plus B plus C upon 2. S means semi parameter. So 15 plus 6 plus 11 divided by 2. जोड़ के बना 11 और 6 17 plus 15 32 divided by 2, that is 16 meter. Value of S is 16 meter. The area will be S into S minus A, S minus B, S minus C whole under root. So value of S is 16. 16 multiply 16 minus 15, 16 minus 6 and 16 minus 11. एक साइड है 15, एक है 6, दूसरी 11. 15, 6 और 11. 16 में से 15 गया 1, 16 में से माइनस 6 हुआ 10 और 16 में से 11 माइनस हुआ 5. अब इसके फैक्टर्स करें. 16 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2. 10 के फैक्टर हुए 2 इंटू 5 और 5 एक अकेला. अब इनके पेयर्स करें तो पेयर्स में आ गया 2, 2 और 5 और अनपेयर्ड रह गया √2. तो ये बन गया 20 √2 मीटर स्क्वायर मीटर. So that will be the area of the wall. जिस पे पेंट किया हुआ है उसका ये एरिया है 20 √2 मीटर. द नेक्स्ट क्वेश्चंस जो ऊपर लिख रखा मैं नीचे वाला इरेज कर रहा हूँ. क्वेश्चन है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर. ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी यानी दो साइड्स बराबर. जो दो बराबर साइडें हैं वो हैं 12 सेंटीमीटर की. दोनों साइडें 12-12 सेंटीमीटर. तो ये होगी थर्ड साइड सी. अब ये कितनी होगी वो अभी पेरीमीटर से पता लगेगा. तो perimeter of isosceles triangle (30 centimeter). Therefore, A plus B plus C is equal to 30 centimeter. 12 centimeter, 12 centimeter plus C is equal to 30 centimeter. 24 plus C 30. C की वैल्यू आई 30 minus 24, that is 6 centimeter. The third side is 6 centimeter. So S will be A plus B plus C upon 2. 12 plus 12 plus 6, that is 2. 30 divided by 2, 15 centimeter. The semi perimeter is 15. The area will be area of the triangle will be
s into s minus a, s minus b, s minus c under root. S is 15, 15 minus 12, 15 minus 12 and 15 minus 6. 15, 3, 3 and 9. 15, 3 into 5, 3 into 3, 3 into 3. अब इनके पेयर्स के हिसाब से 3 के 2 पेयर्स पूरे हो गए और एक 3 और एक 5 अनपेयर्ड रहा। तो हो गया 3 into 3 into अंडर रूट 15, तो 9 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, द यूनिट इज सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया ऑफ द गिवन isosceles triangle. So students, I have given you solutions for some of the questions from the exercise, and in the beginning I have given some introduction regarding the figures which will be used during this exercise. So I request you to go through the video and share the video if you like it. Then subscribe also the channel. So thank you. Have a nice day.